We need to discuss the part two of the composting process in community waste management systems. And we would be discussing the large scale composting processes when we are like having a lot of tonnage of solid waste in terms of municipalities. What would be the process and what would be the designing phases of composting pad and related processes and other procedures. First of all, we need to know about the composting setups. Like we do have the windrow process, which is the largest and the easiest way of converting our solid waste into the compost. It is very easy to implement this process in terms of municipality solid waste management because it is involving very little engagement of machinery and other investments. It just requires a lot of land and we can convert our solid waste into the compost. Like we can see in the first picture over here. Here we just have a patch of land where the waste has been spreaded in elongated piles and it is being converted into the soil fertilizer or soil conditioner. The second process is the in-vessel composting process. We can also see a picture over here which is showing a vessel type setup which can be used for the conversion of solid waste into the compost. It is relatively fast and controlled process, but it obviously it cannot handle a lot of waste as well as it requires a lot of investment in terms of its reactor designing and its fabrication and operation along with the time. Then we have new and advanced biological methods which would be discussed at the end of this lecture. And similarly, we do have bin composting at household level as well, where we can put our daily household waste at our lawn or garden into a bin, which is like acting as the composting bin. The waste is lying over there for a certain time period, which is required by the natural process for the decomposition of solid waste and to convert that solid waste into the compost. So it is a home composting setup basically, and it plays a very important role in terms of waste recycling at source. It would be like cutting a lot of finances and costs in terms of the storage, collection, transportation, and then handling at the compost plant developed by the community or the municipality. So if someone is operating a composting bin at his or her home, it is a very noble gesture towards contributing in the contribution in the solid waste management system in terms of reducing the load on the municipality. If we all start doing that, that would be reducing a lot of burden on the solid waste management authorities because a lot of organic waste instead would be diverted from the mainstream and it would be diverted on permanent basis and it would be handled accordingly as well. So it is very important to discuss this point as well. So these are major areas where we can convert our solid waste into compost, and it can be utilized as soil conditioner as well. And the most important and the prime objective of all these activities obviously is to protect the human health as well as to protect the environment by reducing the load on the environment, by reducing the pollution on the environment, and by reducing the contamination of the environment. Moving on to the very first type of compost, which is the windrow composting. It is the only, or it can be said that it is the process which can handle a lot of tonnage of solid waste for the conversion of solid waste into the compost.
and it is very feasible option for all the municipalities to conduct this method for the effective compost production. So if we are going to conduct composting process, there are a few common steps which are very common in all types of composting processes, and then we have some separate functions which are related to each type of composting process accordingly. First of all, we receive waste, and waste is received at the composting pad. No matter it is if you are converting your solid waste at your household level, then the waste will be received over here. If you are converting it on commercial but smaller scale, due to the vessel in vessel composting process, then the waste would be received at this point. And if you are converting your waste into the compost at the windrow processing system, then the waste would be received at this composting pad. So these are the points of waste receiving. So we have to manage, or we have to conduct few activities on these points as well for the better compost process. If we have received the waste, then we have to sort it or segregate it. Removal of recyclable material, metals, debris, glass. These materials will affect the quality of compost if not removed. As we have discussed in our initial lecture, was the introduction of compost, and I can recall this slide as well, where we have segregated the items which are to be added in a composting process, or which are to be avoided from the composting process. So these are the general items, and there are a lot of many other items which are to be added or which have to be removed or avoided from the composting system. Then we have shredding or size reduction or screening to homogenize the waste in terms of its particle size, which plays an important role in the biodegradation or decomposition of the waste. And it is to provide greater surface area for microorganism attack, to improve insulation, to facilitate homogenizing of initially heterogeneous material, to reduce depth for oxygen diffusion. If size is too small, it impedes the diffusion of oxygen to and carbon dioxide from the sites being attacked, especially during a thermophilic stage, then when oxygen demand is the highest. जब आप साइज इसका रिड्यूस करते हैं, तो ऑब्वियसली इट वुड बी सेटल डाउन इन अ वेरी homogenized way as compared to the material which is having a larger size. जब आप इसको उस पैटर्न पे ले आते हैं, होमोजेनाइज कर देते हैं और इसका साइज भी रिड्यूस कर देते हैं, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी लेस पोरोसिटी or the less pore for the intrusion of oxygen. That's why we are writing that it improves the insulation. इंसुलेशन मीन्स के जो इनसाइड टेम्परेचर है दैट वॉन्ट बी लूज, और इसी तरह से जो बाहर से टेम्परेचर या कूलिंग है वो इनसाइड ऑफ द हीप नहीं आ पाएगी. इसी तरह से हेट्रोजीनियस मटेरियल जो है उसको फैसिलिटेट करता है टू होमोजेनाइज एज वेल. इसी तरह से टू रिड्यूस द डेप्थ फॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजन. जब बहुत ज़्यादा उसका साइज़ हम होमोजेनाइज कर देते हैं, पोर साइज कम हो जाता है, तो फिर ऑब्वियसली उसकी ऑक्सीजन की पेनिट्रेशन जो है उसको भी हम लिमिट कर देते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड दैट वी हैव इम्प्रूव्ड द इंसुलेशन ऑफ द विंडरो. Steps in composting operations. This is very important when oxygen is supplied naturally. Moreover, size of the product should not be dust-like for land application.
typical range for the feed material must be half an inch for forced aeration to 2 inch for heap or windrow composting. जैसे आपने जो फाइनल प्रोडक्ट आपको चाहिए दैट मस्ट बी grain type product so that it can be applied to the लैंड इजीली. अगर आप पाउडर टाइप मटेरियल कोई बना देते हैं या बन जाता है और आप उसको फिनिश अच्छी तरह से उसकी फिनिशिंग नहीं कर पाते, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई दैट वेस्ट दैट कंपोस्ट ऑन द लैंड. और उसके लिए फिर एक जो आपका कस्टमर है उसको कन्विंस, दैट वुड बी another task in the marketing of the composting. तो इसलिए आप पहले से ही उसको ग्रेन साइज में कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट इट इज easy to apply on the land and the customer is satisfied with the proper application of compost onto the soil. इस वजह से फिर वो कहते हैं कि जब आप फोर्स एरेशन और द विंडरो एरेशन पैटर्न पे जब आप कंपोस्ट बनाते हैं तो ये मटेरियल का साइज होना चाहिए. फॉर एग्जांपल फोर्स एरेशन ये होता है कि जिसमें आप मटेरियल को कुछ नहीं कहते, उसको जस्ट आप एक हीप बना के रख देते हैं फॉर 35 to 45 days. और उसमें जो एरेशन रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन हमने पढ़ा था कि इफ़ द ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स 5% देन इट्स activity or the decomposition is hindered or halted by 90% or more. तो आप उस ऑक्सीजन लेवल को भी पूरा रखने के लिए उसके अंदर फोर्स्ड एरेशन प्रोवाइड करते हैं एंड दैट इज थ्रू द एडिशन ऑफ ब्लोअर्स और सम फैंस और सम वैक्यूम सिस्टम. तो एक तो वो हो गई फोर्स एरेशन वाली सेटअप जिसमें आप ओपन हीप है लेकिन आप उसको टर्न नहीं कर रहे. दैट वुड बी लाइक रिक्वायरिंग एडिशनल ऑक्सीजन थ्रू सम गैजेट्स और मैकेनिकल डिवाइसेस. तो उसके लिए आपको हाफ इंच की जो रॉ मटेरियल है, फीड स्टॉक है, वो चाहिए होगा. बट इफ़ यू आर गोइंग टू टर्न इट ओवर एंड ओवर अगेन और हर वीक के बाद आप उसको टर्न करते हैं तो दैट वुड बी लाइक 2 inches of the raw material would be sufficient for that heap. और उससे जो है आपकी कंपोस्ट वो फॉर्म हो जाएगी obviously after the completion of the desired time period. Adjustment of waste properties in terms of carbon to nitrogen ratio, pH, moisture content and all related factors which were discussed earlier in the previous lecture as a part 1 of this composting process. Decomposition and curing and maturation जो है वो decomposition process एक itself एक time taking process है, natural process है. इसमें क्या होगा कि आपका वेस्ट जब आपने सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स, सारी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर दी हैं, तो उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल स्टार्ट टेकिंग देयर ओन रोल एंड दे वुड बी लाइक डिकम्पोजिंग द वेस्ट इनटू द स्मॉलर पीसेस और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और स्मॉलर products, and they would be like resulting in terms of its totally stable form which is called as compost. और फिर आप उसको मेच्योर करते हैं, मेच्योर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंप्लीशन ऑफ द थर्मोफिलिक फेज. थर्मोफिलिक फेज में आप जब उसके पैथोजेनिक एक्टिविटीज़, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी जब वो इनहिबिट कर देते हैं या किल कर देते हैं थ्रू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ थर्मोफिलिक स्टेज, तो फिर आपकी जो कंपोस्ट प्रोसेस है दैट इज टर्निंग इटसेल्फ टुवर्ड्स अ मैच्योरेशन फेज. एंड मैच्योर फेज जो होती है उसमें फिर आपका वापस मेसोफिलिक और सैक्रोफिलिक फेजेस की तरफ वापस आते हैं एंड finally the product is ready and you add few additives in terms of finishing the product and then you bring it to the later on stages which are like being discussed in these next points. Preparation and marketing of the final compost product. तो जब आपने उसको mature phase के बाद आपने उसको obtain कर लिया तो अब आपने उसकी further preparation करनी है according to the market needs
so that the customer is satisfied and he is like willing to buy that compost product and to apply that compost product without any hesitation or without any ambiguity in his or her mind that it can contain the pathogenic microorganisms or other materials inside the compost or this product. तो आपने उसको इतना प्योरीफाई करना है, इतना मिच्योर करना है, इतना उसको आपने फाइन करना है, इतना उसको आपने एक्सक्यूज मी, इतना आपको आपने उसको प्रिपेयर करना है कि वो बिल्कुल से जो है ना वो एक सूटेबल प्रोडक्ट फील हो और कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड हो। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि आप उस मेच्योर कंपोस्ट को ग्राइंड कर सकते हैं, स्क्रीनिंग उसकी कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, ब्लेंडिंग कर सकते हैं विद वेरियस एडिटिव्स जो आपके लेस हैजर्डियस केमिकल एडिटिव्स होते हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर और द मार्केट ऑफ द कस्टमर ग्रुप। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त वो केमिकल्स, अदरवाइज फिर वो बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि आप बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र प्रिपेयर कर रहे हैं या केमिकल फर्टिलाइज़र। तो ये जब आपकी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा आप बना रहे हैं एंड द कस्टमर्स आर लाइक हैविंग अ डाइवर्स वैरायटी, तो उसमें हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हों जिन्होंने इसको ऐसी जगह पे अप्लाई करना हो जहाँ पे उनको थोड़ी सी एडिशनल यील्ड भी चाहिए हो अलॉन्ग विद द application of the organic compost or organic fertilizer. So you can add some additives in that biological fertilizer, but this the resultant fertilizer would be having less impact on the environment as compared to the chemical fertilizers. फिर ग्रेन्यूलेशन प्रोसेस आप करते हैं जिसमें आप इसी पाउडर फॉर्म के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट ऐड करते हैं एंड देन you pass this entire product from rotary setup which is also involving the heat, और moisture content जो हमने ऐड किया था that would be like removed to the heat and the rotary is converting the powder into the granules which are very easy to pack and apply on the soil. फिर आप उसकी बैगिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, स्टोर करते हैं टू दी फ्रेंचाइजेज और योर वेयर हाउसेज एंड देन यू ट्रांसपोर्ट द compost to your like customers or whoever is using this compost. तो ये आपकी एक चेन है जो अगर आप कोई भी अगर बिजनेस करना चाहता है या कोई इस तरह का कोई सेटअप लगाना चाहता है इन देयर ओन म्यूनिसिपैलिटीज या टाउन्स या हाउस होल्ड लेवल पे, विच एवर लेवल इज बीइंग लाइक डिजायर्ड, तो आप वहाँ पे आपको ये काम करना पड़ सकता है। आप कुछ एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप होम कंपोस्टिंग की बात करते हैं तो देयर इज़ नो नीड ऑफ हैविंग all these steps which are like required for marketing, because you yourself are determined enough to use that organic fertilizer in your lawns. तो जब आपने उसको डिकम्पोज करवा लिया at your own household level और कंपोस्टिंग बिन है आपके पास या कुछ भी, आप फॉर एग्जांपल एक ड्रम है आपका प्लास्टिक का कोई भी है, उसमें आप वेस्ट को रखते रहते हैं, तो you just need to mix the desired materials inside that bin और उसमें मॉइस्चर कंटेंट ऐड करना है। कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो के लिए आपने देखते रहना है कि कोई मटेरियल ज़्यादा तो नहीं है, और उसके बाद उसको ऑन एंड ऑफ आपने उसको टर्न ओवर करते रहना है। तो वो कुछ ही वीक्स में वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द कंपोस्ट। इतनी देर में आप एक और जो है वो आपका सेटअप तैयार होगा। तो आप इस तरह से जो है ये कंपोस्ट जो है वो हाउस होल्ड लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए ये ग्राइंडिंग, स्क्रीनिंग, एयर क्लासिफिकेशन, ब्लेंडिंग, ग्रेन्युलेशन एंड बैगिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है। ये कमर्शियल लेवल पे है। जब आप बहुत बड़े लेवल पे, फॉर एग्जांपल आप लाहौर की बात करें तो they were having 500 tons on daily basis at their composting pad. 500 tons means कि it's a lot of quantity,
उसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वो इतना वेस्ट ले रहे हैं, तो 40 डेज के लिए उसने वहां पे रहना है। तो फॉर नेक्स्ट 40 डेज दे वुड बी रिसीविंग अनदर 500 टन्स ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो फिर 40 डेज के बाद जब उनका पहला बैच रेडी होगा, तो फिर हर दिन एक बैच रेडी है और एक बैच नया लगा दिया, एक बैच रेडी है 500 का और एक बैच नया लगा दिया, या मे बी दे आर लाइक दे आर मिक्सिंग इट फॉर 2 to 3 डेज के 2 से 3 दिन में कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता उसकी डिकम्पोजिशन में। तो दे आर हैविंग अ सिंगल विंडो ऑफ 2000 टन्स। तो उसमें 3 से 4 दिन का वेस्ट एक ही विंडो में वो मिक्स करके रख रहे हैं, और उसको प्रिपेयर होने में जो टाइम लगता है वो मतलब दे आर रिसीविंग एवरी 4 to 5 डेज जो है वो एक विंडो जो है वो उनकी रिसीव कर रहे हैं, जो मेच्योर विंडो है। तो ये तो आपको प्लांट विजिट करने पे या उनकी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करने पे, उनके साथ बैठने से पता चलेगा कि वो कितना वेस्ट जो है वो डेली एक विंडो में कितना ऐड कर रहे हैं। तो बहरहाल 500 टन्स जो है वो आउट ऑफ 6 to 7 thousand टन्स लाहौर का टोटल जो सॉलिड वेस्ट है उसमें से सिर्फ 500 टन्स वो रिसीव कर रहे थे, विच वाज आल्सो अ ह्यूज क्वांटिटी। कि इतनी फैसिलिटीज़, इतना नॉलेज या इतनी एक्सपर्टीज ना होने की वजह से, या इतनी इंटेंशंस ना होने की वजह से आप कह लें कि 500 टन को भी हैंडल करना और कंपोस्ट में कन्वर्ट करना और फिर उसको यूटिलाइज करना, इट्स अ वेरी बिग डील। और उनके लिए ये सारे प्रोसेसेस फिर बनते हैं कि उन्होंने किस तरह से इसको आगे लेके चलना है। तो बाकी अगर आप हाउस होल्ड लेवल पे देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको इन चीज़ों से लिबर्टी मिल जाती है कि आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना, किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, कहीं पे आपने प्रॉफिट नहीं जनरेट करना। यू जस्ट नीड टू reduce your own waste, being a responsible citizen, and later on if you have converted that waste into soil conditioner, तो फिर आप उसको अपने ही घर में यूटिलाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज नॉट हैविंग देयर lawns in their houses, so even then they can have pots in their house hold, and they can add those composting products into the pots, so that the natural or the green setup can be developed at household level. और अगर उससे भी आगे आप कहते हैं कि नहीं, हमने बिल्कुल ही घर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, बिल्कुल से भी कुछ भी नहीं है ऐसा, तो फिर भी आप इवन यू कैन पुट अ कंपोस्टिंग बिन एट योर रूफ टॉप, और आप उस अपने वेस्ट को डाइवर्ट करते हैं विद द इंटेंशन कि अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं कंपोस्ट उसको दे दूंगा। So that's acting like an environmentalist, or avoiding your waste on permanent basis to send to the disposal site, or to the municipality who spend a lot of money to collect that waste, to store that waste, to transport that waste to the dump site, basically, which is the ultimate pollution threat to the environment and human health. इसी तरह अगर आप इन वेसल कंपोस्ट फ्लो चार्ट को देखें तो उसमें भी आपका इट्स रिलेटिवली लाइक कंट्रोल्ड प्रोसेस। मैंने आपको बताया कि जहां आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास टोटली नेचर के हवाले आपने कर दिया, इवन इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल एज वेल, इन टर्म्स ऑफ इट्स कन्वर्जन और डिकम्पोजिशन, इन टर्म्स ऑफ इट्स टर्निंग, इन टर्म्स ऑफ इट्स डिकम्पोजिशन स्पीड, हर चीज को आपने नेचुरल जो है वो सेटअप पे छोड़ दिया। बट इफ यू लुक एट द वेसल कंपोस्टिंग, इट्स रिलेटिवली कंट्रोल्ड। आपको पता है कि आप इतनी ही ले सकते हैं क्वांटिटी, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। आप मॉइस्चर कंटेंट इसमें ऐड कर सकते हैं, आप मिक्स इसको कर सकते हैं। जब इसमें सर्दी है, गर्मी है, उस हिसाब से आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, एरेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब ये आपका कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है तो द अल्टीमेट बेनिफिट इज़ दैट कि आपका जो टाइम पीरियड था जो नेचुरल प्रोसेस में लगना था, वो टाइम पीरियड बहुत कम हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इट्स कंट्रोल। तो इस वजह से फिर ये थोड़ा सा इस सेंस में ईजियर है कि आप कंपोस्ट जो आपको फ्यू वीक्स में मिलनी थी वो अब
ज़रा जल्दी आपको जो है ऑब्टेन हो जाएगी। तो आपका कंट्रोल उसमें ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी आप यही चीज़ें देखेंगे कि आपका हाउस होल्ड लेवल है, उस पे आप रिसीविंग एरिया है, जो आपका प्लांट है वहाँ पे रिसीविंग एरिया है, फिर श्रेडर है, श्रेडर से आप उसको एयर उसमें एनरिच करने के लिए उसको एयर क्लासीफायर से गुजारते हैं। उसके बाद अगर आपके हैवी मेटल्स या कुछ और चीज़ें ऐसी निकल आती हैं जो कि रिसाइकलेबल हैं, तो उनको आप यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, और उनको जो है वो इकट्ठा करने के बाद आप उनको ये भी कर सकते हैं कि उनको एनर्जी जनरेशन फैसिलिटी या आरडीएफ की तरफ भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप कंडक्ट करने के बाद जितनी भी उसके अंदर रिसाइकलेबल थे जो आप कंपोस्ट प्रोसेस में डिज़ायरेबल नहीं है, तो उनको आप रिमूव करके आप उनका जो फर्दर आपने सेटअप बनाया हुआ उसमें लेके जाते हैं। बट आफ्टर segregating the waste from the organic waste, the combustible waste from the organic waste, आप ऑर्गेनिक वेस्ट को इस वेसल एरिया में डाइजेशन के लिए या डिकम्पोजिशन के लिए ऐड कर देते हैं, और फिर इसमें उसको टाइम पीरियड देने के बाद उसको स्क्रीन कर लेते हैं, ये कंपोस्ट अपनी जो है उसको आप अचीव कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आप इसका जो टोटल आप कह लें कि कंट्रोल है वो आपके पास होता है। और कंपोस्टिंग बिन मैंने बताया जैसे कि हाउस होल्ड लेवल पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं टू सेव स्पेस, hasten decomposition and keep the yard looking neat, contain the compost in some sort of structure. A wide variety of composting structures can be purchased or made from a variety of materials. They can be as simple or complex as desired. तो ये कोई इतना, you just need a container to store the waste for few days, and that responsible for the for holding the waste for a while, and meanwhile it is being digested or converted. Excuse me. तो ये कंपोस्टिंग बिन है, और ये आप किसी भी जगह पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने लॉन में कौन सी जगह पे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, और दैट मस्ट बी लाइक परमानेंट solution for your organic waste. तो जब आपका ऑर्गेनिक वेस्ट ही नहीं जनरेट होगा, या जनरेट हुआ तो आप उसको डायरेक्टली कंपोस्टिंग बिन में डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू वॉन्ट बी contributing towards the municipalities solid waste generation rates, and the rest of the waste is quite recyclable and can be sent to the लोकल रिसाइकलर्स। आपके ग्लास है, बॉटल्स हैं प्लास्टिक की, सिमिलरली यूज्ड मेडिसिन है, अगेन वो भी ग्लास है, इसी तरह पेपर है, कार्डबोर्ड है, न्यूज़पेपर है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप टोटली सेपरेट करके रख सकते हैं, और वो बी वेस्ट से अवॉइड किए जा सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे डर्ट या डस्ट ही बच जाती है जो आप वेस्ट में भेजेंगे। बट इट डिपेंड्स अपॉन के आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करते हैं। ठीक है, अगर एक हैबिट बन जाती है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन small acts performed by millions of people can have a very huge impact. तो इस वजह से जो है वो अगर सारे लोगों में ये अवेयरनेस हो और सारे लोगों को पता हो कि हम ये कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली देयर वुड बी वेरी वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। और जो लोग एटलीस्ट इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इनकम एरिया ऐसा है कि हर घर में इस तरह लॉन नहीं होंगे, तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि जिसको ज़रूरत ही नहीं है वो इतनी हेडेक क्यों ले, वो तो वेस्ट को बाहर ही ड्रॉप करके आएगा। तो ओवरऑल बात ये है कि जिनको ज़रूरत है वो भी नहीं कर रहे, चाहे वो भी, उनका भी नंबर बहुत ज़्यादा है। और मैंने बताया कि आप उसको ज़रूरत बनाएं, अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत बनाएं।
आप रूफ टॉप पे आप गार्डनिंग कर सकते हैं, और घर में भी वैसे भी आप कर सकते हैं जहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। आप अगर यूज़ नहीं करना चाहते, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं उसको। कंपोस्ट जो है वो एक प्रॉपर आफ्टर इट्स मेच्योर फेज आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। तो आपका एटलीस्ट वेस्ट जो है वो ठिकाने लगता रहेगा। ये गांव में जिस तरह से एक स्ट्रक्चर है, इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर आपने वैसे भी देखा होगा, जो सॉडस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है वो रखा होता है इन्होंने गांव में, लेकिन कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी आप ये देख सकते हैं कि इसमें एयर पैटर्न को भी मेंटेन करने के लिए, सिमिलरली मॉइस्चर कंटेंट फर्दर ऐड ना हो उसके लिए कवर, और उसमें इनसाइड द मटेरियल जो है, इनसाइड द हीप जो जितना भी मटेरियल है उसको, तो ये सारा इस टाइप का भी एक आप सेटअप बना सकते हैं, जो लेटर ऑन आप उसको यहाँ से निकाल के अपनी ही फील्ड्स में स्प्रेड आउट कर देते हैं फॉर एज एन एडिशनल फर्टिलाइजर। So windrow composting, which is the commercial scale composting, it is a biodegradable material which is constructed into elongated piles, and that pile then is called as windrows. The windrows are monitored throughout the composting process to ensure that the optimum temperature, oxygen concentration, and moisture content are maintained. The windrows are turned periodically to introduce fresh air and water to maintain the ideal conditions for the composting. With different aeration systems like forced aeration or turning manually in so that the air can penetrate into the system. Then the types of waste and waste generators for window composting. The method can accommodate large volumes of diverse waste, including yard trimmings, grease, liquids, and animal byproducts such as fish and poultry waste, but only with frequent turning and careful monitoring. Basically, the windrow composting can receive a lot of variety of solid waste to convert it into the compost. इसके अंदर जो इसकी ब्यूटी यही है कि ये बहुत ज़्यादा टनेज को हैंडल करती है, और उसी में फिर आपकी अगर कुछ मटेरियल जो है वो कुछ अगर उसमें अनवांटेड मटेरियल भी आ जाए तो वो डोमिनेंट पार्ट जो है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का होता है, और इस वजह से वो सारे का सारा कन्वर्ट हो जाता है। एंड दी थर्मोफिलिक फेज फर्दर जो है वो उसमें से पैथोजेनिक एक्टिविटी जितनी भी एक्सपेक्टेड होती है उसको रिमूव कर देती है। Then this method is suited for large quantities such as generated by entire communities and collected by local governments and high volume food processing businesses. For example, restaurants, cafeterias, packing plants, etc. Climatic or seasonal consideration for window composting include in a warm, arid climate, windows are sometimes covered or placed under a shelter to prevent water from evaporating. बहुत important point है. In rainy seasons, the shapes of the pile can be adjusted to so that the water runs off the top of the pile rather than being absorbed into the pile. तो ये आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी, जो आपकी विंडो है रेनी सीजन में, कि अगर रेनफॉल हो जाती है तो फिर वाटर उसमें परकुलेट ना करे। Also, windrow composting can work in cold climates. Often the outside of the pile temperature may freeze, but in its core, a window can reach up to 140 Fahrenheit. देखें, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो एम्बियंट टेम्परेचर है या जो आउटसाइड टेम्परेचर है या जो सराउंडिंग टेम्परेचर है,
किसी हद तक रोल हो सकता है, बट इट कैन नॉट ड्राइव द कंपोस्टिंग प्रोसेस। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कनाडा में या किसी और एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा वहाँ पे हम कंपोस्ट कैसे बनाएंगे, वहाँ तो टेम्परेचर ही नहीं वो वाला आएगा। तो बेसिकली यू हैव टू पुट दैट वेस्ट इन फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ विंडो। अब क्या होगा कि आपकी विंडो का वॉल्यूम रिलेटिवली आप ज़्यादा कर देंगे सो दैट द इंसुलेशन इज़ इम्प्रूव्ड, और इनसाइड जो आपकी इनर साइड है उसमें आपकी इंसुलेशन या उसमें आपकी जो टेम्परेचर की एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू दी डिकम्पोजिशन बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड दैट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपग्रेडेशन और द इंक्रीज इन टेम्परेचर इनसाइड द सॉलिड वेस्ट हीप। तो बाहर चाहे जो मर्जी टेम्परेचर हो, आपका इनसाइड द हीप जो टेम्परेचर है दैट कैन गो अप बाय मैनी फोल्ड्स, और उसकी वजह से आपकी जो कंपोस्ट प्रोसेस है वो कंटिन्यूड रहता है। बस जब आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया, फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि अब जो अंदर जितना भी वेस्ट है दैट हैज़ बीन कंपोस्टेड और दैट हैज़ बीन डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फिर आप उसको टर्न ओवर कर लेते हैं। तो इस तरह टर्न ओवर करने से जो आउटसाइड पे मटेरियल अन अटेंडेड पड़ा था ड्यू टू दी लेस टेम्परेचर, अब वो इनसाइड चला जाएगा तो वहाँ पे फिर वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको टर्न ओवर करने की वजह से जो है वो इनसाइड आउट आउटसाइड इन जो है वो पैटर्न पैदा होता है, और उसकी वजह से फिर आपका सारा वेस्ट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। Environmental concerns क्या हो सकते हैं? These are very common concerns in terms of managing leachate, which is the liquid released during the composting process. This can contaminate local groundwater and surface water supplies and should be collected and treated. Then we have window composting is a large scale operation and might be subjected to regulatory enforcement. You need to acquire the legal requirements or legal approvals by the government or the EPAs to conduct this operation, as it is involving a lot of environmental concerns. Samples of the compost should be tested in laboratory for bacterial and heavy metal content. Bacterial content must be monitored or checked after the completion of the composting process. We must check the heavy metal content के कहीं उसमें heavy metals तो नहीं है, क्योंकि the thermophilic phase cannot remove or evacuate the metallic content from the compost. Odors also needed to be controlled in the composting process. The public should be informed of the operation and have a method to address any complaints about animals or bad odors. Other concerns might include zoning and siting requirements of the area. ये अभी हम फर्स्ट जो प्रोसेस है विंडो कंपोस्टिंग उसी की ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, और हम ज़्यादा फोकस इसी पे ही करेंगे, और उस पे हमारी फोकस करने की रीज़न जो है वो ये है कि हम डे वन से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज़ इंटेंडेड टू मैनेज द सॉलिड वेस्ट ऑफ एन इंटायर कम्युनिटी rather to have an insight at the household level or at a very small patch of the community. तो हम पूरे सिटी की या पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं, हम म्यूनिसिपैलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग these type of composting processes in detail so that we can have an understanding for the implementation of window composting, which is a very common solution in terms of diverting a lot of waste from mainstream to the recycling process. इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए हो सकती है। स्टर्डी इक्विपमेंट हो सकता है, इसका अपना कस्टमाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए हो सकता है। अ कॉन्टिन्यूअल सप्लाई ऑफ लेबर टू मेंटेन एंड ऑपरेट द फैसिलिटी. Obviously, if you are putting the waste for 40 days over there
एंड यू आर ऑपरेटिंग दी साइट, तो आपको फिर वहाँ पे परमानेंट स्टाफ चाहिए होगा who would be responsible for looking after that setup as well as the machinery which has been procured to support the operations. Patience to the experiment with various materials, mixtures and turning frequencies. तो आप जब नया एक्सपीरियंसेस करेंगे तो उन एक्सपेरिमेंट्स को बेयर करने के लिए पेशेंस भी होना चाहिए आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन आपको रिजल्ट्स अचीव हो जाएंगे। And the results section says that this method will yield significant amounts of compost which might require assistance to market the end product. तो आपको एंड प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए आपको फर्दर फिर आगे टीम चाहिए हो सकती है। अल्टरनेटिवली लोकल गवर्नमेंट्स कैन मेक द कंपोस्ट अवेलेबल टू रेजिडेंट्स फॉर अ लो और नो कॉस्ट। तो आप फिर जब आप इतने कह लें कि बहुत ज़्यादा इतनी क्वांटिटी में कंपोस्ट बना रहे हैं तो यू कैन अवॉइड दीज स्टेप्स जो लास्ट पे लिखे हुए हैं, ग्राइंडिंग, स्क्रीनिंग, एयर क्लासिफिकेशन, ब्लेंडिंग विद वेरियस एडिटिव्स, ग्रैन्युलेशन। आप उस कंपोस्ट को जब आपकी मेच्योर हो गई है तो उसको आप सिटीजन्स के लिए अवेलेबल कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप जितनी क्वांटिटी आप मार्केट करना चाहते हैं उतनी ही क्वांटिटी आप मार्केट करने के लिए उसके अंदर वो प्रोसेसेस अप्लाई करें, बाकियों के ऊपर आप इतनी कॉस्ट ना लगाएं, because it would be very difficult to convince the local residents to buy a soil conditioner at that price. तो आप उसमें इनपुट वैल्यूज अगर कम कर देते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपकी अपनी कॉस्ट कम हो जाएगी। एंड इवन आप पैकेजिंग भी नहीं करते और आप उनको बोलते हैं कि वो ओपन जो है वो कोई भी चीज़ लेके आएँ, अपना बैग खुद से लेके आएँ और जितने केजी उनको चाहिए वो आप उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है वो फिर उनको ऑफर कर देते हैं। तो इट इज़ हैपनिंग, इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई हम जुगाड़ लगा रहे हैं और हम इस तरह बात कर चलो जी सिस्टम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान एज वेल एज इन द अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और बहुत सारे लोग हैं जो कंपोस्ट जो है परचेज करते हैं तो दे नीड दैट कंपोस्ट इन द पैकेजिंग फॉर्म, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनको कंपोस्ट तो मिल जाए बट एट अ रिड्यूस रेट विदाउट पैकेजिंग। तो वो रेट कम करवा लेते हैं, इवन 50% डिस्काउंट करवा लेते हैं, बट दे डू नॉट रिक्वायर पैकेजिंग और द फिनिशिंग, और वो डायरेक्ट ही उस कंपोस्ट को लेके चले जाते हैं अपने बैग्स में। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी प्रेपरेशन के, ऑपरेशन के और मैनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे जो हमारी टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग है ना उनके हवाले से हमने देख लिया। उससे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसमें तो हमने कोई टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा था, उसमें हमने देखा था कि कोई भी टाइप हो उसमें ये प्रोसेसेस होने हैं, उसमें ये फैक्टर्स चाहिए होने हैं। कोई भी प्रोसेस से बेनिफिट जो आपने लिया है, कंपोस्ट लिया, उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। अब जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया तो उसके बाद हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ ली। डिफरेंट टाइप्स में भी हमने विंडरो कंपोस्टिंग जो कि वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ को हैंडल करती है उसको हमने ज़्यादा फोकस किया। इसके अलावा हमारे पास वेसल कंपोस्टिंग है और इसके अलावा एडवांस कंपोस्टिंग है, उसको अभी हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, देखा या कुछ भी किया, और वो हम बाद में करेंगे। और फिर हमारे पास होम कंपोस्टिंग है। तो ये सारे प्रोसेसेस हमने देखे हैं। अब विंडरो कंपोस्टिंग जो है वो हम चूंकि म्यूनिसपैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे तो विंडरो कंपोस्टिंग को ही हम लेटर ऑन आगे लेके चलेंगे और इसी के ऊपर हम जो है वो डिज़ाइनिंग जो है वो कंपोस्टिंग पैड की करेंगे। तो आप काइंडली अपने साथ कुछ चीज़ें जो है वो रख लें so that we can design or we can prepare ourselves for modeling the composting pad। अगर आपको किसी जगह पे कंपोस्ट
प्रोड्यूस करनी है तो आप उसके लिए किस तरह से एरिया सजेस्ट करेंगे, किस तरह से आप उसकी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से आप उसकी जो अरेंजमेंट्स हैं वो करते हैं। ये इनिशियल एक फिगर है जिसमें आपको डिफरेंट पैटर्न सिखाए गए हैं कि विंडो किस तरह से बनाई जा सकती है और कौन कौन सी शेप रखी जा सकती है। और इनमें भी आप कह लें कि लास्ट टू शेप्स और लास्ट थ्री शेप आर मोर reliable and more useful in terms of the operation as well. उनके फॉर्मूलाज भी गिवन है अगेंस्ट ईच शेप कि अगर आप कोई भी शेप अगर लेते हैं तो उसका एरिया किस तरह से कैलकुलेट करना आपने। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू नीड एरिया, आपको लैंड एरिया चाहिए जहाँ पे आपने कंपोस्ट प्रोड्यूस करनी है। और अगर आपको एरिया का नहीं पता होगा कि हमें कितना एरिया चाहिए हमारे पूरे सिटी के वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो फिर आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए ही ये चीज़ें, ये शेप्स या इस तरह का उनका जो डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स हैं उनको हम देख रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने ये गौर किया हो तो ये एक विंडो के लिए आपने उसका पैटर्न जो है वो सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हम सिलेक्ट करते हैं ट्रायंगुलर शेप को। ट्रायंगुलर शेप आपने अगर सिलेक्ट कर लिया है तो इट्स एरिया वुड बी लाइक इट्स बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, ये इसका एरिया है। बट इट्स द एरिया फॉर वन विंडो ओनली, ठीक है ना। एक विंडो के लिए आपको इतना एरिया चाहिए। यू कैन नॉट से दैट कि आप इसकी टोटल लेंथ भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, विच इज़ लाइक विच वुड बी इनकॉर्पोरेटिंग इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ। और इसके अलावा इसके एडजेसेंट जो दूसरी अगर आप यहाँ पे एक और विंडो बनाते हैं, फिर एक और बनाते हैं, फिर एक और बनाते हैं, तो उसका एरिया और उन दोनों के बीच में जो मनूवरिंग एरिया या प्रोसेसिंग एरिया या मूवमेंट एरिया रखना है आपने, उसकी कैलकुलेशन कहाँ से आएगी, वो किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है, किस तरह से आपने एडजस्ट करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज हमने डिस्कस करनी है। तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर भी होना चाहिए, आपके नोट्स भी आप प्रिपेयर करने चाहिए आपको। इफ़ यू आर हैविंग दिस क्लास ऑन योर मोबाइल्स, तो आप इसको इन चीज़ों को अरेंज करें कि आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड देन you would be like able to design a composting pad for any municipality in your towns or in your societies. You can volunteer yourself to offer this design or this skill to them, so that you can offer them your skills for the conduct of the composting process. और इसके साथ साथ आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रेपरेशन का मौका मिल जाएगा एंड यू वुड बी मच मोर रिलैक्स कि आपने खुद अपने हाथों से इस चीज़ को डिज़ाइन किया। अगर आप खुद साथ साथ चलते जाए, इट्स वेरी इजी। आई हैव लेड डाउन ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और आपको इंशाल्लाह इशू नहीं होगा, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आप साथ चलेंगे तो, otherwise it would be very difficult to understand all the requirements on the later stages before the exam night, तो फिर आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं। अब ये देखें, आपने एक एरिया में जाके अगर आपने कहा कि हम जो है वो करना चाहते हैं, ज़्यादा विंडोज़ बनाना चाहते हैं, तो फिर किस तरह से है कि एक विंडो है उसका एरिया कितना है, उसकी लेंथ कितनी है और उनके सेंटर में कितनी जगह है, फिर दो या एक बैच है उसके बाद बीच में ज़्यादा जगह छोड़ी हुई है, फिर दूसरा बैच है, या आपने एक ही पैटर्न पे सबकी जगह छोड़ दी है। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी design or the person who is designing this composting pad, उसके पास मशीनरी किस तरह की है,
उसके पास वेस्ट की जनरेशन रेट्स क्या हैं, व्हाट आर द इनकमिंग रेट्स ऑफ द वेस्ट, और उसके पास टोटल एरिया कितना है, ये सारे फैक्टर्स उसको देखते हुए वो जो है वो अपने कंपोस्टिंग पैड को डिज़ाइन करता है। और दिस डिज़ाइन आर नॉट लाइक fixed design according to the demand or need. You can modify these designs and you can go with the better one. अगर आपको एक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद नहीं आया या उसके इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो यू कैन गो फॉर अनदर डिज़ाइन। और आपको वो सारी टेक्निक्स जो है वो मैंने इसी वजह से आपके साथ वो सारे शेयर कर दिए हैं। शेप्स, किसी भी शेप को आप कैरी ऑन कर सकते हैं। विंडो जो है, आप बेसिकली इस चीज़ को हम विंडो कहते हैं, एक जो है ये विंडो कहलाएगी अब। तो विंडो के डायमेंशंस क्या होंगे, इसकी 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 विड्थ है, इसकी हाइट है एंड इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये एक विंडो के डायमेंशन होंगे। फिर मैनी विंडोज होंगी तो उन सब के डायमेंशंस को आप जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एरेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? Efficient utilization of land area, structural strength and size of the feedstock particles. Structural strength in turn is a key factor in the maintenance of the interstitial integrity needed to ensure a sufficient oxygen supply. Structural strength basically इस चीज़ को ही आप अस्यूम कर लें कि जो हमने कहा था कि श्रेडिंग के बाद आप उसका साइज जो है वो यूनिफॉर्म कर देते हैं, एंड देन यू प्रोवाइड बेटर इंसुलेशन टू दी विंडो। और उसके बाद उसकी जो इंटरनल इंटेग्रिटी है या उसके इंटरनल प्रोसेसेस हैं उनको भी आप मेंटेन रखते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो जितनी रिक्वायर्ड है उतनी उसकी सप्लाई भी मेंटेन रखते हैं। All dimensions could be expanded during winter to enhance self insulation. मैंने बताया था पहले कि अगर बाहर टेम्परेचर कम हो जाए तो फिर आप उसके डायमेंशंस थोड़े ज़्यादा कर लेते हैं, so that the inner side can maintain its properties. In windy and arid regions, the dimension can also be expanded so as to minimize moisture loss through evaporation. तो अब विंड ज़्यादा है या एरिड रीजन्स हैं तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि आप अपने नॉर्थ आपकी डिज़ाइन वैल्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, लेंथ थोड़ी ज़्यादा कर दी, हाइट थोड़ी ज़्यादा कर दी उसकी, और डेप्थ भी ज़्यादा। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मॉइस्चर लॉस है वो भी नहीं होगा अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है सराउंडिंग का। तो कैलकुलेशन ऑफ द टोटल एरिया ऑफ विंडो पैड जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स कंबाइन टू डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ द एरिया रिक्वायरमेंट, अमंग देम आर the total volume of material to be accommodated during all stages of the compost process, that is from the construction of the windows through disposal of the stored product. तो सबसे पहले तो आपको उसकी जो विंडो पैड का पूरा, विंडो पैड कहते हैं जहाँ वो एरिया जहाँ पे सारी विंडोज मौजूद हैं, और इट इज़ लाइक एन एरिया विच इज़ हैविंग द ऑपरेशनल एरिया इन टर्म्स ऑफ द विंडो कंस्ट्रक्शन, देन मैनूवरिंग एरिया एंड द बफर जोन एज वेल। तो इसके लिए आप कैलकुलेशंस करते हैं पूरे। तो उसमें वो कह रहे हैं कि पहले तो आपको टोटल वॉल्यूम जो आप रिसीव कर रहे हैं उसका पता होना चाहिए कि कितना वॉल्यूम है जो हमने इसमें अकामोडेट करना है। फॉर एग्जांपल डे 1 पे आपके पास 500 टन आया और आप कहते हैं कि हमारा कंपोस्टिंग प्रोसेस इज़ लाइक कंटिन्यूड फॉर 45 डेज। तो आप 45 डेज को मल्टीप्लाई करें आप 500 टन्स के साथ, तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ द वेस्ट विच हैज़ टू बी अकोमोडेटेड एट दैट साइट। क्योंकि अब अगर एक बार 500 टन्स आपने ले लिया वेस्ट, तो अगले 45 डेज तक आप उसको इवैक्यूएट नहीं कर सकते, उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते until unless it has been converted into the compost and it is shifted to the new site for other processes। तो तब जाके वो उसकी जगह इवैक्यूएट होगी
और उसकी जगह पे फिर आप नया बैच जो होगा वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे फॉर अनदर कंपोस्टिंग प्रोसेस। तो इसलिए आपको टोटल जो टाइम पीरियड लगता है उसके उसके वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जितना ज़्यादा कंट्रोल आप करते हैं, जितनी ज़्यादा उसमें मैकेनाइजेशन आप इन्वॉल्व करते हैं, जितनी ज़्यादा उसके कंडीशंस को आप हैंडल करने की कोशिश करते हैं, तो उतना ज़्यादा आपका टाइम पीरियड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और आपको जो पैच 45 डेज़ के बाद अवेलेबल होना था, अगर वो पैच आपको 40 डेज़ के बाद भी अवेलेबल हो जाए तो आपके 5 दिन बच जाते हैं। 35 डेज़ के बाद आ जाए तो आपको 10 दिन बच जाते हैं। 30 डेज़ के बाद आपको मिल जाता है तो आपके 15 दिन बच जाते हैं। तो इट्स लाइक कि आप उस प्रोसेस को जितना कंट्रोल करेंगे, जितना फास्टन करेंगे, इतना जल्दी आपका कंपोस्टिंग पैड आपके हवाले किया जाएगा। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द विंडोज भी इम्पॉर्टेंट है इसमें कि आप इनको फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रखेंगे, नॉर्थ टू साउथ रखेंगे, टिल्टेड रखेंगे, क्या आपका पैटर्न क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपकी विंडोज की। स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द एसोसिएटेड मटेरियल्स, हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड द मैन्यूवरिंग देयर ऑफ, ये भी आपको चाहिए होगी। छोटा मोटा ऑफिस चाहिए होगा, कोई मशीनरी की पार्किंग चाहिए होगी, कोई ऑपरेटर्स या स्टाफ के लिए सिटिंग एरिया चाहिए होगा। तो ये एडिशनल आपको वहाँ पे रिसोर्सेज चाहिए हो सकते हैं। द एरेशन सिस्टम may also be required by the entire setup. The following is a summary of the steps involved in calculating the pad area. For convenience, the steps are arranged in 4 main groups. First group is the total volume of the feedstock has to be composted. ये आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं ए की। ए इज़ द टोटल फीड स्टॉक, टोटल वेस्ट जो इनकमिंग वेस्ट है। फिर आप एरिया ऑक्युपाइड बाय अ सिंगल विंडो, तो एक विंडो आपकी जो है वो कितना एरिया ऑक्युपाई कर रही है, आप उसका एरिया इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं बिकॉज इट्स अ फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड यू कैन check its width and length easily, and you can calculate the area which is occupied by that single windrow. And then later on you can multiply with the number of windrows to calculate the total area occupied by the all windrows. Maneuvering area is the area which is or the space which is in between the two windrows, and the total pad area is the sum of B and C. All right. Total volume for the feedstock can be the critical factor in terms of the total amount which has to be converted into the compost area occupied by the sole windrow. Determine the volume of each windrow. Then volume of the each windrow can be calculated by the area multiplied by the length of the windrow. Then you can cross-sectional area is a function of cross-sectional configuration. Figure above shown illustrates 4 types of cross-sectional configuration जो मैंने पहले आपको दिखाई थी जिसमें different shapes थी. The cross-sectional area of a pile having a square or rectangular cross-section is given as the base into the height. तो ये एक एग्जांपल दी है उन्होंने, इसी तरह से बाकी 3 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं ऊपर टॉप पे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपका 3.4 बी में है, 3.4 सी में है, 10.6 डी में है। ये वो फिगर्स हैं जो हमने पीछे 4 शेप्स देखी थी और उनके अकॉर्डिंगली उनका एरिया था। फॉर एग्जांपल लास्ट पे ट्राइंगल थी तो उसका एरिया जो है वो दैट इज लाइक हाइट इनटू बेस जो है वो था, तो उसको डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका एरिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया था किसी भी एक विंडो का इस शेप में जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो। दूसरे नंबर पे आपने नंबर ऑफ विंडोज फाइंड आउट करना था कि टोटल नंबर ऑफ विंडोज कितना है, तो वो बहुत ही इजी है। एज यू हैव कैलकुलेटेड द टोटल वॉल्यूम फॉर द फीड स्टॉक, जब टोटल वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लेना है और एरिया आपको फिजिकली खुद से पता है कि आपका एरिया कितना है विंडो का,
तो इसी तरह से विंडो की लेंथ भी आपको पता है, तो आपको एक विंडो का वॉल्यूम भी पता है। एक विंडो का पता है वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम फॉर द कंपोस्टिंग प्रोसेस भी पता है। तो इस वॉल्यूम को जब टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ विंडोज। टोटल वॉल्यूम टू बी कंपोस्टेड, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल विंडो। ठीक है, एक विंडो का जितना वॉल्यूम है उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे टोटल वेस्ट के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी विंडोज बनानी पड़ेंगी। इसी तरह से डिटरमाइन द एरिया सोली ऑक्युपाइड बाय द विंडोज। पहले एरिया आप वो फाइंड आउट कर लें जो सिर्फ और सिर्फ विंडोज जो है वो उसके ऊपर कब्जा कर रही हैं या विंडोज के लिए वो रिक्वायर्ड है। तो वो टोटल एरिया आप किस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ विंडोज मल्टीप्लाई बाय एरिया बाय ऑफ द सिंगल विंडो। तो यहाँ से नंबर ऑफ विंडोज आपने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ विंडोज आ जाता है 7, तो एरिया आपके पास था कोई 20 स्क्वायर मीटर एक विंडो का। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 20 वुड बी 140 स्क्वायर मीटर्स, जो आपके पास टोटल एरिया चाहिए होगा फॉर ऑल विंडोज। ठीक है, इसके ऊपर हम एग्जाम्पल करेंगे तो दैट वुड बी मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। अभी आप लोगों को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इशू हो रहा है, मे भी इशू हो रहा होगा क्योंकि हम ये जो स्टेप्स हैं इनको सेपरेट डिस्कस कर रहे हैं। तो जब एक ही अम्ब्रेला में हम इसकी जो ये एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो दैट वुड बी मच इजियर टू अंडरस्टैंड। और ये एग्जाम्पल यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। अ सैम्पल कैलकुलेशन टू डिटरमाइन द एरिया फॉर द कंपोस्टिंग पैड इज एज फॉलोज। मनोवरिंग एरिया के बारे में मैं थोड़ा सा बता लूँ तो देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ द कंपोस्टिंग पैड, और ये न्यूमेरिकल फिर हम सॉर्ट आउट करेंगे। मनोवरिंग एरिया क्या होता है कि ये वो एरिया है जिसमें आपकी मशीनरी, आपकी मैन पावर या आपके गैजेट्स जो है मूव करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन नॉट अलाउ देम मूविंग ऑन दी विंडोज। तो उनकी साइड्स पे कुछ एरिया आपको चाहिए कि अगर आपका कोई ट्रैक्टर है, कोई टर्निंग इक्विपमेंट है, कोई एरेशन सेटअप है, कोई ह्यूमन मूवमेंट है, तो उसके लिए आपने रास्ता देना है। That is called as maneuvering area. So maneuvering area is the space required to maneuver the turning and the other equipment. One space on each side of a window. The area of each space is given by the equation as area of the space is equal to the window length multiplied by the width of the space. तो आप उसका एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि मनोवरिंग एरिया कहाँ तक होगा, वो जहाँ वहाँ तक होगा जहाँ तक आपकी विंडो होगी। ठीक है, तो लेंथ जो होगी विंडो की एक, तो वो आप उसके साथ एक डायमेंशन उसकी वो ले लें, और दूसरा जो दो विंडोज के दरमियान का एरिया है, फॉर एग्जांपल इफ वी लुक एट दिस फिगर, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अगर हमें ये मनोवरिंग एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करना है, वी नो दैट दिस लेंथ इज फॉर एग्जांपल 10 मीटर्स और 20 मीटर्स। तो ये 20 मीटर्स तो एक इसकी साइड हो गई, दूसरी साइड इसका ये फ्रंट है जो कि 20 मीटर्स वंस अगेन है। तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 20 जो है ये टोटल मनोवरिंग एरिया है। इसी तरह से आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 20 भी कर सकते हैं, तो ये भी आपका मनोवरिंग एरिया है। इसी तरह से यहाँ फिर आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि विंडोज की लेंथ तो सबकी सेम है ना, तो वो 20 आपका सेम रहेगा। तो ये आपका एरिया यहाँ पे निकला गया। तो ये सारे एरियाज जो बीच में पड़े हैं इन सबको भी कैलकुलेट करना है। इसकी टोटल पेरिफेरी पे जो एरिया है उसको भी कैलकुलेट करना है, इसका अपना जो एरिया है उसको भी कैलकुलेट करना है। फिर इन सबको ऐड कर देना है, उसमें आपका पेरिफेरी प्लस विंडो प्लस मैनूवरिंग एरिया, ये सारे जब ऐड हो जाएंगे तो आपकी कंपोस्टिंग पैड की कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। जब आप कंपोस्टिंग पैड में ये ऑपरेशनल एरिया कैलकुलेट कर चुके हैं तो उसके बाद आप कहते हैं कि हम बफर जोन यहाँ तक देंगे। बफर जोन जो है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हम ऑफिस का एरिया इतना देंगे। उसके बाद आप उसको फाइनल कैलकुलेशंस करके बताते हैं कि आपको इतना एरिया चाहिए और इस एरिया के अगेंस्ट आपकी कंपोस्टिंग जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो सकती है। तो वो सारी की सारी चीज़ वंस अगेन डिपेंड करती है आपके वेस्ट जनरेशन से, विच वाज द वेरी फर्स्ट फंक्शनल एलिमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम।
तो जब तक हमें वो नहीं पता होगा तब तक हम ये सारी चीज़ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं होगा वेस्ट आ कितना रहा है, जनरेट कितना हो रहा है, कितना आ रहा है डेली वेस्ट, टनेज कितनी है, टनेज का नहीं पता होगा तो टोटल वॉल्यूम का नहीं पता चलेगा, टोटल वॉल्यूम का नहीं पता चलेगा तो वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल विंडरो नहीं पता चलेगा, सिंगल विंडरो के वॉल्यूम का नहीं पता चलेगा तो टोटल नंबर ऑफ विंडरोज का नहीं पता चलेगा, और टोटल विंडरोज का पता नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली we won't be able to calculate the composting pad area. The width of the space depends upon the type of turning machine. आप कितनी width देनी है दो विंडरो के दरमियान मनोवरिंग एरिया को, वो डिपेंड करता है आपके पास मशीन कौन सी है। The following widths are approximate estimates. तो ये एस्टिमेट्स हैं, आप इनको फॉलो कर भी सकते हैं या आप अपनी मशीन या अपनी टर्निंग इक्विपमेंट के हवाले से आप खुद से वो डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमारी टर्निंग इक्विपमेंट ईजीली इतने एरिया में मूव कर सकती है, तो हम इतना एरिया नहीं देना चाहते, हमें इतने के साथ ही ओके हैं। For example, if turned with a bucket loader, width may be as little as 4 feet. If a self-propelled turner is used, the width may be from 3 to 5 feet. If a tractor-assisted turner is used, 6 to 8 feet. The space between two individual aerated piles is about 20 feet. चलें जी, आप अपनी सारी जो आप एक बार मुझे कंफर्म कर दें कि आप सबके पास अपना इसको नोट डाउन करने के लिए, नोट्स डेवलप करने के लिए आप सब ने अपने गैजेट्स रेडी कर लिए हैं, एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया फॉर द कंपोस्टिंग पैड। तो ये कैलकुलेशंस जो हैं वो आपकी रह ना जाएं किसी की भी, कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा ना हो जिसने ये नोट डाउन नहीं किया और वो रह गया, फॉर एग्जांपल उसने इसको समझा नहीं है, कोई भी ऐसा ना हो। प्लीज मेक श्योर कि एवरीबॉडी इज राइटिंग दिस न्यूमेरिकल। प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। 4 to 5 people have yes sir. ऑल राइट, आई होप कि आप सारे लोग मेच्योर इनफ हैं कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। लेटर ऑन आपको ये आपकी काम आएगी ये चीज़। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। हमारे पास एक एरिया है जहाँ पे हमारा डेली जो वेस्ट आता है दैट इज़ 24 क्यूबिक मीटर्स पर डे। ठीक है, तो दिस इज़ द टोटल क्वांटिटी विच इज़ कमिंग ऑन कंपोस्टिंग पैड। और उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जहन में आता है दैट इज़ कि आपने टाइम कितना देना है। तो वी आर हैविंग 50 डेज ओवर हियर, जो डिटेंशन टाइम है दैट इज़ 50 डेज। तो 24 क्यूबिक मीटर्स पर डे है वेस्ट, 50 डेज के लिए अब ये इस कंपोस्टिंग पैड पे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट 50 डेज तक ये यहीं पे रिटेन रहेगा, और अगर होगा तो ऐड होगा, सबट्रैक्ट नहीं होगा वेस्ट। That's why the third step says that the total volume of material on the pad must be 50 multiplied by 24 cubic meters, which is the 1200 cubic meters. So this is the total quantity of your solid waste which has to be converted into the compost during these 50 days. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 51st डे को क्या होगा कि जो आपका इनिशियल जो विंडरोज थी जो आपने डे 1 पे लगाई थी, डे 2 पे, डे 3 पे, वो आपकी खाली हो जाएंगी और वेस्ट आप वहाँ पे पुट डाउन करना शुरू कर देंगे। अब आपको एरिया इस हिसाब से चाहिए कि 50 डेज के लिए आपको कोई मसला ना हो। आपके फॉर एग्जांपल ये लाहौर की हम बात करें, रावलपिंडी की बात करें, टेक्सला की बात करें, यूईटी की बात करें, किसी भी सर्टन टाउन की बात करें,
तो वहां पे ये इतनी क्वांटिटी आ रही है। इस क्वांटिटी के अगेंस्ट आपको कंपोस्टिंग पैड डिजाइन करना है, और वो कहते हैं कि 50 दिन लगेगा हमारा कंपोस्ट बनने में। तो आपने सबसे पहले तो टोटल वॉल्यूम निकालना है कि टोटल वॉल्यूम हमें है हमारे पास कितना जो हमने कंपोस्ट में कन्वर्ट करना है। तो दैट इज 1200 क्यूबिक मीटर्स। अब इसकी विंडरोज हम बनाएंगे, विंडरोज बनाएंगे क्योंकि हम विंडरो कंपोस्टिंग करना चाहते हैं। अच्छा, विंडो कंपोस्टिंग करना चाहते हैं तो 4-5 शेप देखिए हम कौन सी बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जी हम इसकी सिंपल जो डायमेंशंस है वो आपको बता देते हैं, और फार्मूला भी हम खुद बता देंगे कि कौन सा फार्मूला आपने लगाना है इसकी जो विंडो है उसकी डायमेंशंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो वो कहता है लेंथ जो है एक विंडो की वो 50 मीटर होनी चाहिए, हाइट 3 मीटर होनी चाहिए, विड्थ 4 मीटर होनी चाहिए। तो अब ये आपको एक विंडो का वॉल्यूम भी बता सकता है, 53 एंड 4, ये आपके पास इसके डायमेंशंस हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द विंडो जो है इन्होंने शेप सेलेक्ट की है, उसमें उसका उसका जो वॉल्यूम है एक विंडो का, दैट इज 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज डायमेंशंस ऑफ द विंडो। 4 is the base, 3 is the height and 50 is the length। इसका 2/3 जो है दैट इज द वॉल्यूम। ये 2/3 इसलिए है कि ये शेप इन्होंने इस तरह की सिलेक्ट की है, जैसे वो 4-5 शेप्स मैंने आपको दिखाई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कहता है कि हमारे पास विंडो का वॉल्यूम जो है दैट इज 400 क्यूबिक मीटर्स। आपके पास टोटल जो वॉल्यूम है दैट इज 1200 क्यूबिक मीटर्स। एक विंडो का वॉल्यूम 400 क्यूबिक मीटर बन रहा है। तो नंबर ऑफ विंडोज आपके पास कितनी हो जाएंगी, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल विंडो, 1200 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 3। तो 3 विंडोज बनेगी जी आपकी, 3 विंडोज बनेगी 50 दिनों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 12 दिन के लिए आप वेस्ट जो है वो एक ही जगह पे रखते रहेंगे, या 15 दिन के लिए वेस्ट एक ही जगह पे रखते रहेंगे। ठीक है, लार्ज स्केल है 40 to 50 डेज में बन जाता है, कंपोस्ट बन जाती है। तो इस वजह से 50 डेज इन्होंने कर दिया है, ताकि हम बार बार जो विंडो नई शुरू करने की बजाय एक ही विंडो में बहुत सारे दिनों के लिए वेस्ट जो है अकोमोडेट करते रहें, क्योंकि वेस्ट ज़्यादा नहीं है, 24 क्यूबिक मीटर्स ओनली। एक डंपर, 2 डंपर, 3 डंपर, ठीक है, 4 या 5 क्यूबिक मीटर जो है वो आपका एक डंपर जो है उसमें वेस्ट आ जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 6 से 8 डंपर जो हैं वो अगर सेमी या फुल फील्ड हैं तो उनसे जो है आपका इतना वेस्ट बन जाता है। तो इतना से वेस्ट जो है वो आ रहा है। तो उन्होंने कहा जी आप इसको डेली बेसिस पे एक ही विंडो में आप इसको इलोंगेट करते जाएं, एक ही विंडो डिज़ाइन करें 15 दिन के लिए। अगले 15 दिन का वेस्ट जो है वो नई विंडो बनानी शुरू कर दें, तो पिछली विंडो जो है उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुकी होगी। नई के 15 दिन पूरे होते होते जो पहली विंडो थी उसका प्रोसेस काफ़ी कंप्लीट हो चुका होगा। मीनवाइल आप तीसरी विंडो स्टार्ट कर देंगे। जब आप तीसरी विंडो को कंप्लीट करेंगे या उसके एंड में पहुंचेंगे तो फर्स्ट विंडो जो है दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू दी कंपोस्ट। तो जब आप तीसरी विंडो में वेस्ट को पाइल अप करना कंप्लीट करेंगे, आखिरी दिन होगा, तो इधर आपकी कंपोस्ट पूरी हो चुकी होगी। तो फिर आप क्या करेंगे कि उसमें उसको रिमूव कर देंगे और उसमें विंडो 1 की जगह पे जो आपकी जगह खाली हुई है वहाँ पे फिर से आप विंडो बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह साइक्लिक एक्टिविटी में आप पूरा अपना सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करते हैं और चलाते हैं, और उसमें एनवायरमेंटल, सीजनल या बाकी जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके तो फिर आप इसको डिज़ाइन करते हैं। इसी वजह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 दिन की फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। 15 दिन वेस्ट जो है वो एक ही हीप में ये इलोंगेट करते जा रहे हैं, एक ही विंडो बना रहे हैं उससे। अच्छा जी, नंबर ऑफ विंडोज आ गई हैं। ये कहते हैं नंबर ऑफ विंडोज 3 है।
तो 3 विंडोज़ आप अपने आपने जो वो मैंने आपको दिखाया था जिस तरह से डिफरेंट विंडोज़ साइड बाय साइड, इसी तरह से 3 विंडोज़ आप डिज़ाइन भी कर लें कि जिसमें उसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर्स हो, उसकी हाइट 3 मीटर्स हो और उसकी वेट जो है वो 4 मीटर्स हो, और ये सेमी सर्कुलर टाइप जो है वो विंडो हो, ट्राइंगल नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन द विंडोज, अब 3 विंडोज है ना, तो आप अगर उसको अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, तो इट वुड बी लाइक दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन। ठीक है, तो ये विंडोज हैं आपकी। और इसके बाद वो कहते हैं कि आप जो उनके डिस्टेंस बिटवीन द विंडोज है दैट इज 4 मीटर्स, तो आप उसका डिस्टेंस जो है उसको भी आप अपनी नोटबुक पे इजीली जो है वो आप इसको मार्क कर सकते हैं कि आपका डिस्टेंस जो है ये दिस इज 4 मीटर्स। तो कितने होंगे 4 मीटर्स? हमारे पास 2 होंगे, क्योंकि हमारी विंडोज के डिस्टेंस बिटवीन 2 विंडोज जो है वो सिर्फ 2 आ रहे हैं। ये तो साइड पे आ गया ना, दिस इज नॉट बिटवीन। ठीक है, ना ये बिटवीन है ना ये बिटवीन है, दिस इज ओनली द एरिया विच कैन बी कंसिडर्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 विंडोज। तो ये आपके पास एक डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह से मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही बता देता हूँ ताकि हम जब हम लेक्चर की तरफ जाएं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो। फिर कुछ आपको डिस्टेंस जो है वो ये देखना होता है, दिस इज कॉल्ड एज द पेरिफेरी डिस्टेंस। इस पेरिफेरी डिस्टेंस को आप 4 साइडों पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको यहाँ पे भी लेना है, और ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है हर जगह पे, चारों तरफ से इक्वल होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप इसमें नोट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है यहाँ पे ये 3 मीटर्स है, ये 3 मीटर्स है, ये 3 मीटर्स है, ये 3 मीटर्स है, और ये 4 मीटर्स है। लें जी, अब आप सारा क्वेश्चन ही आपका सॉल्व हो गया। तो ये आपके पास टोटल जो हमने आप कह लें कि जो टोटल एरिया है, वी हैव कैलकुलेटेड द टोटल एरिया ऑफ द कंपोस्टिंग पैड। और ये आपने टोटल कंपोस्टिंग पैड का टोटल एरिया कैलकुलेट कर लिया है। अब इसको जो है वो आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आप इसको, मैं यहाँ पे अपनी तरफ से इसमें ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको कुछ और आप इसको दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपके पास ये है, एक चीज़ आपके पास ये है जो कि आपकी विंडो की टोटल है विड्थ। फिर आपके पास जो है वो एरिया बिटवीन 2 विंडोज आ जाता है। उसके बाद फिर विंडो की आ जाती है, वो यहाँ पे आ जाएगी, ये एरिया बिटवीन द विंडोज आ गया। फिर ये एक और विंडो का एरिया भी यहाँ पे पहले लगाते हैं, और इसी तरह से एरिया जो है वो ये वाला भी कैलकुलेट करना है, और इसी तरह से ये वाला भी कैलकुलेट करना है। तो ये सारे जो आपके पास ABCDEFG, ये सारी लेंथ आपकी, अब देखें ना, आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसको कैलकुलेट करना। आप देखें हमारा पर्पस ये है कि हमें ये एरिया चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए, कितनी ज़मीन चाहिए हमें इस सारे कंपोस्टिंग पैड को डिज़ाइन करने के लिए, हम उस चीज़ को देख रहे हैं।
Sorry, this should look like this type of like the front view must be visible, but I am like uh, intending to show this in terms of elongated pile. ये लेंथ वाइज मैं इसका टॉप व्यू हेलीकॉप्टर व्यू दिखा रहा हूँ आपको, जो आप एक ड्रोन व्यू आप कह लें कि ड्रोन व्यू ये है आपकी साइट का। तो इट्स नॉट अ फ्रंट और क्रॉस सेक्शनल व्यू, आप इसको उस तरह से इमेजिन ना कीजिएगा। दिस इज द हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ योर साइट। तो इसको आपने जब ये इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, सिमिलरली यू आल्सो नो दैट द total length of the windrow is we know that it's 50 meters। ठीक है, तो ये 50 मीटर्स है हमारे पास टोटल, जो इसकी आप कह लें कि जो हमारे पास वैल्यू है इसकी इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, हमें तो चाहिए टोटल एरिया। एक एरिया हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया इन पैचेस को ज्वाइन करके, एक एरिया हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे इनको 3 मीटर्स को, 50 मीटर्स को और फिर ये 3 मीटर्स को। तो लेंथ इनटू विड्थ किसी भी जगह की, किसी भी पैच ऑफ लैंड की जो है, दैट वुड बी लाइक रिजल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ योर टोटल एरिया। Similarly, if you add some buffer zone into that area, तो आपके पास वो बफर जोन जो है वो भी ऐड हो सकता है। यहाँ पे आप कहते हैं कि यहाँ तक कोई लोग ना आए, यहाँ पे बिल्कुल से भी इधर लोगों को आना मना है, या हम इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते कि लोग यहाँ पे आए, तो दिस कैन बी एडेड एज बफर जोन। और बफर जोन जो है उसको फर्दर आप जो है वो कोई जो है लेंथ या विड्थ उसकी दे सकते हैं कि इसका बफर जोन इतना है, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप उसको इस तरफ से भी ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो है वो बफर जोन की डायमेंशंस यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है ये आपकी जस्ट एरिया को कैलकुलेट करने के लिए है, बट बिफोर कैलकुलेटिंग द एरिया you must know the total amount of waste which has to be converted to the compost. Similarly, you need to find out the total number of windrows and the requirement of the maneuvering area, which depends upon the machinery which is being used to turn over the waste or to manage or to operate the composting setup। और उसके बाद आपका बफर जोन है, और उसके बाद आप कहीं पे ऑफिसेज देते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर लाइक this can be calculated by an expert which knows each and everything in terms of the composting system। अगर उसको ये चीज़ें नहीं पता तो it would be very difficult for a person to calculate or to understand these things। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा आप उस हिसाब से देखें। ये सारे एरियाज जो हैं वो हमने इस तरह से कैलकुलेट अब करने हैं कि हमें हमारे लिए थोड़ा सा नहीं हो जाए। ये मैंने थोड़ा और इसको जो है वो चेंज कर दिया सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड एंड मेक प्रोजेक्शंस अकॉर्डिंगली। आई बिलीव कि आप लोगों के लिए अब ये थोड़ा सा easy हो गया होगा। Let's move back to the numerical calculations so that we can complete the numerical. Total volume, then number of windrows 3, distance between the windrows was 4 meters, space around the perimeter of composting area I already shared with you that the space at the perimeter or the surrounding of all 3 windrows। देन लेंथ ऑफ द कंपोस्टिंग एरिया। अब ये कंपोस्टिंग एरिया कह रहे हैं, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसमें आपको ये बताया जाए कि हम कंपोस्ट विंडरो की लेंथ बता रहे हैं। विंडरो की लेंथ यहाँ पे हमें पता चल चुकी है 50 मीटर्स है। ठीक है, विंडरो लेंथ 50 मीटर्स है, लेकिन कंपोस्टिंग एरिया की लेंथ जो है दैट वुड बी 50 मीटर प्लस 3 मीटर्स 2 टाइम्स, एक इस साइड पे 3 मीटर, एक उस साइड पे 3 मीटर, जो
उसका पेरीमीटर का था। तो 56 मीटर्स जो है टोटल लेंथ हो गई। एक डायमेंशन आ गया एरिया का। दूसरा एरिया का डायमेंशन क्या है? विड्थ। विड्थ ऑफ द कंपोस्टिंग एरिया वुड बी विड्थ ऑफ विंडरोज। ठीक है, हमारी जितनी विंडरोज हैं कितनी है? 3 विंडरोज हैं। 3 विंडरोज की विड्थ कितनी रखी है हमने? 4 मीटर्स। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एक हो गया, प्लस डिस्टेंस बिटवीन विंडरोज। विंडरोज के बीच में डिस्टेंस कितने थे? 2 थे, क्योंकि 3 विंडरोज हैं तो बिटवीन में 2 आते हैं। और 2 का जो टोटल डिस्टेंस था दैट वाज 4 मीटर मेंशनड ओवर हियर। और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंसेस बिटवीन द विंडरोज। फिर आ जाता प्लस पेरीमीटर स्पेस। पेरीमीटर स्पेस एक इस साइड पे थी, एक इस साइड पे थी। 3 मीटर इस साइड पे, 3 मीटर इस साइड पे, तो टोटल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास टोटल विड्थ ऑफ द कंपोस्टिंग एरिया आ जाएगी। और वो है आपके पास 4 इंटू 3, 2 इंटू 4 एंड 2 इंटू 3, टोटल आपके पास 26 मीटर्स आ जाएगी। ये 56 मीटर्स आया था, ये 26 मीटर्स आ जाएगी। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी द एरिया ऑफ योर कंपोस्टिंग पैड। ये आप कैलकुलेट करने के लिए ये सारी एक्टिविटी कर रहे थे। तो लेंथ इनटू विड्थ इज सिंपली 1456 square meter. It is the area for the operational setup of the composting pad, which is incorporating the windrow composting. And these calculations do not include the required setbacks or the buffer zones. I already mentioned with you that if you need to add the buffer zone, you can always add the buffer zone area to this existing area as well. तो ये आपके पास कैलकुलेशंस भी आ गई हैं। इस तरह से आपने इसको अपनी नोटबुक पे भी इस तरह की कैलकुलेशंस जो है वो कर लें। आप काइंडली एक बार कंफर्म कर दें कि ईच एंड एवरीबॉडी हैज कंप्लीटेड दिस कैलकुलेशन। यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई एम्बिग्युइटी हो, किसी को कोई समझ ना आ रही हो? यस सर। किसी को अगर समझ नहीं भी आ रही तो वो भी बता सकता है। सर ये लास्ट पॉइंट दोबारा बता दें। ये मैंने बताया कि आप ना एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, टोटल एरिया, कि आपको कितनी ज़मीन चाहिए। अपना जो वेस्ट आ रहा है 50 दिन के लिए, उसके लिए कितनी ज़मीन चाहिए आपको कंपोस्टिंग पैड बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको पहले तो जो उसकी टोटल लेंथ है वो चाहिए होगी, और फिर टोटल विड्थ चाहिए होगी। तो लेंथ के लिए ये लास्ट पॉइंट आप जो कह रहे हैं उसमें मैं सेकंड लास्ट से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि बोथ आर एसोसिएटेड टू ईच अदर। तो लेंथ ऑफ द कंपोस्टिंग एरिया होगी आपकी टोटल विंडरो की लेंथ, जो कि यहाँ पे 50 मीटर है, और पेरीमीटर स्पेस। क्योंकि आपकी लेंथ जो है ना, आप देखें ना, ये लेंथ है 50 मीटर, पेरीमीटर स्पेस क्या होगी? ये 3 मीटर, और यहाँ पे ये 3 मीटर। बफर की मैंने कैलकुलेशंस नहीं लिखी, बस दिखा दिया आपको बना के, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, 50 मीटर इंटू प्लस 2 इंटू 3, तो ये 3 मीटर तो पेरीमीटर की स्पेस है, और ये दोनों तरफ है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया इसको। तो ये आपके पास 56 मीटर्स लेंथ आ गई है। इसी तरह से जब विड्थ की बात करते हैं, जब विड्थ की बात करते हैं तो आपके पास विड्थ क्या होगी? एक तो इसकी विड्थ, तो ये 3 है टोटल, ठीक है। ये देखें, विड्थ ऑफ द विंडरोज ये आपके पास 3 है, ठीक है। तो इन तीनों की विड्थ जो है वो क्या होगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 3, कि हमने यहाँ पे बता दिया था कि विड्थ ऑफ द विंडरो इज 4 मीटर, और 3 विंडरो हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये टोटल विड्थ हो जाएगी तीनों की। फिर हमने कहा कि उसके बाद फार्मूला कहता है कि डिस्टेंसेस बिटवीन द विंडरोज। तो डिस्टेंसेस बिटवीन द विंडरोज, तो ये टोटल 3 विंडरोज हैं, इनके बिटवीन में तो सिर्फ एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है दैट वुड बी द डिस्टेंसेस बिटवीन द विंडरोज। 8
इसी तरह से पैरामीटर जो है हमारे पास, वो यहाँ पे एक पैरामीटर इस साइड पे आ रहा है, एक पैरामीटर इस साइड पे आ रहा है। मैंने कहा था कि पैरामीटर आपका सेम है चारों तरफ, तो लेंथ में जो पैरामीटर होगा वो भी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, विड्थ में जो होगा वो भी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। इसी तरह अगर आप 4 मीटर का पैरामीटर रखते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, अगर 10 मीटर का रखते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, इधर भी 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इन सब को जमा कर लिया तो ये आपके पास टोटल विड्थ आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास एरिया आ गया पूरे कंपोस्टिंग पैड का। जो ऑपरेशनल एरिया है इसके ऊपर आपका ये 24 क्यूबिक मीटर वेस्ट जो है 50 दिन के लिए इसके ऊपर पूरा आएगा। समझ आइए आपको? Yes, sir. ऑल राइट। फिर इसकी साइट प्रिपरेशन है, द प्रिपरेशन ऑफ द वर्किंग एरिया, दैट इज द एरिया इन विच द विंडोज आर कंस्ट्रक्टेड एंड एसोसिएटेड maintenance equipment is maneuvered for convenience. The working site is also referred to as the compost pad. Pad specifications cover a wide spectrum and are influenced by size of the operation, the nature of the waste to be composted, and the circumstances specific or proximity to residential area, land use, financial capacity, etc. Availability of essential utilities, surface and construction gear to all weather, accessibility and use regardless of whether the pad is sheltered or is exposed to the elements, appropriate aerial dimensions, prevention of water intrusion, collection and disposal treatment of runoff from pad or leachate collection and disposal system, access to water and electricity for the official use। तो ये सारी विंडरो कंपोस्टिंग की जो आपने ये पैड डिज़ाइन किया है ना, उसके ऊपर जो ऑफिसेज होंगे या ऑपरेशंस के लिए आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि वहाँ पे सराउंडिंग में पॉपुलेशन को कोई इशू ना हो, आपने लीचेट कलेक्शन का सिस्टम बनाया हुआ हो, एयर पैटर्न किस तरफ हैं तो ओडोर प्रॉब्लम को किस तरह से कवर कर रहे हैं आप, इसी तरह से वाटर अगर आ रहा है, सरफेस फ्लो आ रहा है तो उसको आप किस तरह से अवॉइड कर रहे हैं कि वो विंडरोज की तरफ ना जाए। इसी तरह लीचेट कलेक्शन एंड उसका डिस्पोजल क्या है आपके पास, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी या गैस कनेक्शंस आपके पास हैं या नहीं है मौजूद वहाँ पे फॉर बेटर फैसिलिटी ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे साइट पे आपको चाहिए होती हैं। इन सारी चीज़ों के बगैर आप ऑब्वियसली यू कैन नॉट ऑपरेट एंड यू कैन नॉट हैव कंट्रोल्ड विंडो कंपोस्टिंग प्रोसेस ओवर देयर। तो ये विंडो कंपोस्टिंग प्रोसेस था डिटेल, जिसकी हमने डिटेल्स देख ली हैं। इसके बाद सेकंड वन इज़ दी इन वेसल कंपोस्टिंग और थर्ड वन इज़ दी बायोलॉजिकल कंपोस्टिंग। इनका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट द लेक्चर वुड बी लाइक कंप्लीटेड। In-vessel composting is a composting process which is similar to the open-air windrow composting, but it is carried out in an enclosed vessel. This allows a greater degree of control of the process, temperature, oxygen and moisture. तो सिंपल डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है, क्वांटिटी कम हो जाती है। ये कुछ इस तरह से है कि आप इसके ऊपर ये मशीन मनूवरिंग मशीन भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब देखें आपको डिस्टेंस बिटवीन द विंडरोज भी ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा, कंट्रोल ज़्यादा है, एरेशन आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट आप स्प्रे कर सकते हैं, टर्निंग आप इसके थ्रू कर रहे हैं, विंडरो आपकी बिल्कुल कंट्रोल में है। तो आप मतलब हर चीज़ जो है वो आपने इसकी जो है वो टोटल कंट्रोल में रखी हुई है। नीचे ये ब्लोअर्स लगे हुए हैं जो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द एरेशन इनटू द सिस्टम। तो ये रॉ मटेरियल इस तरफ से लोड करते जाएंगे, इधर से आप कंपोस्ट जो है उसको डिस्चार्ज करते जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी लाइक मैकेनाइज्ड सिस्टम एंड इट कैन कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो आपकी जो प्रोसेस है उसको फास्टन कर देती हैं, तेज हो जाता है आपका सिस्टम। फिर थर्ड प्रोसेस था न्यूबायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, अदर टेक्निक्स यूजिंग वर्म्स और स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू द अदर यूजफुल मटेरियल्स आर आल्सो बीइंग एग्जामिन्ड।
Vermicomposting relies on the actions of earthworms to break down organic materials, प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्टिंग जो है ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें आप अर्थवॉर्म्स को यूज करते हैं फॉर द decomposition of solid waste into the compost. Anaerobic digestion uses anaerobic bacteria to convert organic material into natural gas, which can be used as an energy source. This flow chart is showing the entire process. Organic matter आ रहा है, स्क्रीनिंग करने के बाद आपने मैग्नेटिक स्प्रेडर लगा लिया जो आपकी मेटेलिक कंटेंट को रिमूव कर रहा है। उसके बाद आप एरेशन बेड में लेके गए हैं उस कंपोस्ट को। ये कंपोस्ट बनने के बाद आप कह लें कि प्रोसेस है, यहाँ पे कंपोस्ट आपकी प्रिपेयर हो चुकी है। ये रोटरी ड्रम है या वेसल है आपकी, बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर डाला, यहाँ पे कंपोस्ट बन गई, यहाँ से इसमें से मेटेलिक कंटेंट रिमूव कर लिया, कंपोस्ट इधर आ गई। यहाँ पे इसमें एयर और ऐड कर दी। उसके बाद आपने इसको मैच्योर होने के लिए यहाँ पे मैच्योरेशन बेड में रखा। यहाँ से फिर मैग्नेटिक सेपरेटर चेक किया, इसमें अगर कोई मेटेलिक कंटेंट है, और इसको फाइन करके मार्केट की तरफ आप इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इट्स लाइक जितने प्रोसेसेस आप ऐड करते जाएंगे दैट वुड बी एनहांसिंग द सिक्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये स्मॉलर लेवल पे जो हमने बात की थी कि कंपोस्टिंग मटेरियल आप रख देते हैं और उसमें आपका जो टोटल जो है वो कंट्रोल होता है, और आप जो है उसको इंसुलेटेड या किसी भी सेटअप में, ये फोर्स एरेशन है, जैसे एयर आप खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से एयर इन है, यहाँ से एयर आउट है, एक साइड से आप एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक साइड से एयर जो है वो हॉट एयर बाहर आ रही है, तो दैट वुड बी लाइक मेंटेनिंग द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द हीप। ये भी एक और मटेरियल कह रहा हूँ, शेप है फॉर द कंपोस्टिंग सेटअप एट स्मॉलर लेवल। ये एक जनरल प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया कि बाहर से कूलर एयर जो है वो मूव करती है, पेनिट्रेट करती है टू द इनसाइड ऑफ द वेस्ट हीप, एंड द वार्मर एयर राइजेज अप। ठीक है, तो इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द कूल एयर, और इस तरह से आपके सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैसिव एयर मूवमेंट इन द कंपोस्टिंग विंडो और पाइल। पैसिव एयर में क्या है कि अब आपको खुद से एरेशन इक्विपमेंट नहीं लगाना पड़ रहा, बल्कि इट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ द एरेशन के, जिसमें आपकी हॉट एयर है वो खुद ब खुद ऊपर मूव कर रही है, और जो कूलर एयर है वो पेनिट्रेट कर रही है, जबकि आपकी फोर्स या एक्टिव एरेशन जो है उसमें आपको खुद से एरेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। फोर्स एरेशन यहाँ पे जैसे बताया गया कि यूज्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द नीड फॉर एक्सपेंसिव टर्निंग इक्विपमेंट। तो अब जो एरेशन आप किसी बड़े ट्रैक्टर या कोई बड़ा इक्विपमेंट ले रहे थे, उसकी बजाय आप उसमें फोर्स एरेशन छोटे छोटे पंप्स लगा के कर लेते हैं। However, in practice, this saving may not always materialize because some turning inevitably is necessary for the satisfactory remedying of localized problem zones. तो वो कहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है टर्निंग, बल्कि और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे अंदर अगर हो गई है डिकम्पोजिशन और ऑक्सीजन सफिशिएंट लेवल में मौजूद है, तो जो बाहर अभी डिकम्पोज होने वाला मटेरियल पड़ा है उसको टर्निंग से आप इनसाइड द हीप लेके जा सकते हैं। दैट्स like the introduction of that waste into the zone where it can be decomposed readily or on a faster base. For ensuring uniformity of decomposition and for the adequate destruction of the pathogens as well. The completed windrow is entirely covered with a 12 to 18-inch layer of wood chips, finished compost or similar material. ये finished compost भी उसके ऊपर as a cover material डाल सकते हैं। The covering absorbs objectionable odors, तो ये objectionable odors को compost में से absorb कर लेगी। It also results in the occurrence of high temperatures throughout the composting mass, and in that way
leads to a more complete pathogen kill as well as uniform decomposition. ये आपके स्टैटिक पाइल्स हैं जिसमें फोर्स एरेशन है। एरेशन के लिए आपको अलग से एक्टिव एरेशन जो गैजेट्स हैं वो इंस्टॉल करना पड़ते हैं। Turning the windrow is very important because it rebuilds the porosity, releases trapped heat, water and gases, exchanges the material at the windrow's surface with material from the interior. More weed seeds, pathogens and fly larvae are destroyed by high interior temperature. If the turning is very important, then what frequency must be followed for of the windrow? Ideally, frequency should be a function of rate of oxygen uptake by the active microbial population. For example, judging from past experiences, 1 to 3 turning every third day is sufficient to meet the oxygen uptake in actively composting municipal solid waste. Of course, this assumes that the municipal solid waste is neither waterlogged nor compacted. Incidentally, waterlogged conditions and compaction can be remedied by increasing the frequency of turning. Waterlogged जिसमें moisture content ज़्यादा हो जाए. It should be noted that the turning frequency of 3 times per week may not be sufficient to kill off the pathogens. Undoubtedly, the complete die-off is a consequence of only about 40 to 50% of typical windrow being exposed at a given interval to lethal temperatures. To allow for an increased frequency dictated by emergency situations, that is excessive moisture, and to ensure hygienic safety, the equipment capacity should be sufficient to permit daily turning. टर्निंग इक्विपमेंट क्या हो सकता है? फ्रंट एंड लोडर हो सकते हैं, आप ट्रैक्टर असिस्टेड टर्नर्स हो सकते हैं, टोटली सेल्फ ड्रिवन मशीनरी हो सकती है। ये देख सकते हैं आप, जैसे ये मैनूवरिंग एरिया है जिसमें मूव कर रहा है आपका ट्रैक्टर, और इसके साथ माउंटेड है एक टर्नर, और इस टर्नर के अंदर जो है वो श्रेडर या टर्नर टाइप एक ब्लेड्स लगे हुए हैं जो कि इस सारे वेस्ट को मिक्स भी कर रहे हैं, श्रेड भी कर रहे हैं, टर्न भी कर रहे हैं। So it's like multi-purpose machinery which is acting as multi-purpose equipment and providing many benefits along with the provision of the aeration. Similarly, these are other equipments which can be used for the turning. ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये टर्न भी करेंगे, श्रेड भी हो जाएगा वेस्ट। What are the essentials of windrow composting? Aerobic presence, माइक्रोऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। How a plant can be operated? Receive waste and sprinkle with cow dung slurry to fasten the process. Make windrow of size 2 meter wide and 1.5 meter high. 1 windrow for each day's waste. Make 21 windrows. Shuffle rotate waste on 6th, 11th and 16th day using front end loader. Monitor regularly for moisture and temperature. Manual segregation of rejects. This is very simple formula. If you have understood the entire composting process, तो it's very easy कि आप ये step follow करें और आप composting process जो है उसको complete कर लें। फिर यहाँ पे कुछ ये factors हैं which are very important to cover in terms of the composting process, और ये हमने बड़ी डिटेल में ये सारे factors हमने पहले ये चीज़ें देख भी ली हैं। व्हाट आर दी एसेंशियल मशीनरीज, कौन कौन सी मशीनरी चाहिए ये भी हमने देख लिया। सीव का देख लें कि सीव इन मैकेनिकली ऑपरेटेड इंक्लाइंड सीव ऑफ साइज 25 स्क्वायर मैश for the final product which has been obtained as a
result of the decomposition. If sieve analysis has to be conducted, if size further reduces, sieve in 5 millimeter square mesh can be used. Oversize back to windrow, अगर ओवरसाइज है तो आप उसको विंडरो में वापस किसी दूसरी विंडरो में फेंक दें, क्योंकि उसकी डिकम्पोजिशन जो है वो फर्दर रिक्वायर्ड है. ट्रांसफर द फाइन्स इनटू द मैच्योरिटी यार्ड फॉर रिटेनिंग 30 days. Packing and sale, about 30% of waste will be converted in the compost. ये इक्विपमेंट्स हैं, ये विंडरो है, ये मैनूवरिंग एरिया है. ये विंडरो के मैनूवरिंग एरिया से जो रिजेक्ट्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, मेटल्स हैं, प्लास्टिक है, बॉटल्स हैं, इस तरह की चीज़ों को अगर वो आ गई हैं और अब वो अपीयर हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ के कुछ वेस्ट जो है वो डीकम्पोज हो चुका है और कुछ वेस्ट जो है वो उसमें डीकम्पोजिशन को हिंडर कर रहा है, तो उसको फिर आप मैनुअली सॉर्ट आउट कर लेते हैं. Here we do have a comparison of composting techniques. सबसे पहले हमारे पास विंडरो कंपोस्टिंग है, फिर पैसिव एरेशन है, फिर फोर्स एरेशन है, फिर इन वेसल एंड फाइनली वी हैव बिन कंपोस्टिंग. तो ये सारी कंपोस्टिंग जो टेक्निक्स हैं एक्सक्यूज मी, इन टेक्निक्स को हम अगेंस्ट सिमिलर पैरामीटर्स जो है वो देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट, मेंटेनेंस, स्पेस, टाइम एंड लेबर कितनी कितनी चाहिए इन सब में. तो उसके हिसाब से एक कंपैरिजन ड्रा कर लेते हैं ताकि हमारे जहन में एक आइडिया बन जाए. आई वाज थिंकिंग एट नाइट के हमारे पास कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि हमने जब पढ़ लिया तो उसको समराइज करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए भी हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए. तो ये मैंने एक चीज़ बनाई है जो मुझे लगा कि ये मे बी इट वुड बी हेल्पफुल. फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो विंडरो की इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ एरिया आपको चाहिए, उसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है. पैसिव में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी आपकी, फोर्स एरेशन में ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, इन वेसल में सबसे ज़्यादा होगी, बिन कंपोस्टिंग में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है in terms of the quantity of waste against the requirement of the bin. फिर आपकी विंडरो कंपोस्टिंग में मेंटेनेंस अगेन उसी पैटर्न पे हैं सारी चीज़ें. स्पेस विंडरो में ज़्यादा चाहिए, बाकियों में कम हो जाएगी. पैसिव में भी ज़्यादा चाहिए. टाइम विंडरो और पैसिव में ज़्यादा चाहिए, बाकी दो में कंट्रोल हमारे पास है तो टाइम कम चाहिए. और बिन कंपोस्टिंग भी अगेन उसी पैटर्न पे है कि इसको रख के हम भूल जाते हैं. लेबर विंडरो में ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए और बाकियों में जो लेबर है वो लेबर वर्क कम है एज कम्पेयर टू दी विंडरो कंपोस्टिंग. आपके साथ अगर स्क्रीन शेयर हो रही हो, आई वांट टू शो यू द बेसिक्स ऑफ कंपोस्टिंग प्रोसेस. विंडरो का जो हमारा कमर्शियल सेटअप है उसको, तो इस वजह से मैं ये वीडियो आपके साथ एक स्मॉल सी वीडियो है ये शेयर करना चाहता हूँ. आप काइंडली बताइएगा कि आपको ये विजिबल है. इज इट विजिबल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये देख के तो फिर हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे. So it helps to improve the porosity of the soil as well. जो आपके पास कंपोस्ट है, it would be like ये इसके बेनिफिट्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें, और इसके बेनिफिट्स एडवांटेजेस हैं हम already देख चुके हैं. होल्ड करती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, और किस तरह से न्यूट्रिएंट्स आप मेंटेन
इसका प्रोसीजर क्या है, ये बनाई किस तरह से जाती है, किस तरह से प्रिपेयर होती है। जितना भी ऑर्गेनिक कंटेंट है आपका उसको आप लेके आते हैं अपने कंपोस्टिंग पैड पे, फिर आप प्लेस करते हैं ऑफ विंडोज और अरेंज करते हैं उस तरह से। और वो विंडोज जो है वो लेटर ऑन आप उसको एज छोड़ देते हैं फॉर प्रोसेस। जैसे यहाँ पे है उस विंडो क्लियर करने से पहले इसकी श्रेडिंग भी करते हैं। These are the windrows which are like formed after the shredding of the material into the acceptable size. These are the number of windrows. You can observe the inside temperature of the windrows as well. जब आप उनको maneuver करते हैं, turn over करते हैं, तो you can easily identify the temperature inside the heap. It can be recorded as the thermometer as well. This is threading and turning the inside out of the windrow. You can see the advancement of the equipments for the turning of the windrow. These are the unwanted materials which are discarded or अब इसके picture को भी ज़्यादा वो जो हम we can add and ask this creation of outdoor material. Can always go to the laboratory for checking products final parameters. Then you can move to the final stages, which are packaging the material or composing into the final product bag, and can be utilized as final product for your gardens or your households. So this was all about the composting comparisons or composting techniques. We would be discussing the further method of composting on a very smaller level, which is the advanced method in terms of the vermi composting. तो वर्मी composting का आपकी क्लास कब है अनवर आपकी? 11:50. All right, then we can spend another 10 minutes to complete this topic as well, so that we can start another new topic in next lecture, rather to stuck in the compost for all 3 weeks. तो वर्मी कल्चर जो है ये डिटेल में ज़्यादा इतना हम इसको नहीं पढ़ेंगे. इट्स जस्ट अ न्यू टेक्निक टू कंपोस्ट टू प्रोड्यूस द कंपोस्ट. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने वेस्ट को पाइल अप करना है और उसमें आप खुद से प्लेस करते हैं. देखें जो जितने भी प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं उसमें हमने कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद से मौजूद होते हैं और दे स्टार्ट डिकम्पोजिंग द सॉलिड वेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कंपोस्ट. But in this case, we have to introduce these kind of earthworms into the system, और वो earthworms जो हैं those would be the responsible for the conversion of that solid waste to the compost. And obviously इनका और उनका थोड़ा सा change इस वजह से है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कन्वर्जन है दैट इज थ्रू अदर प्रोसेसेस, और ये जो इनकी कन्वर्जन है ये इस पूरे वेस्ट को अपनी बॉडी में से गुजारते हैं, एंड देयर एक्सक्रीटा इज लाइक बीइंग यूज्ड एज द कंपोस्ट.
तो इनका जो कंपोस्ट होगी ऑब्वियसली दैट वुड बी relatively fine and इसके ऊपर अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है और इसके ऊपर काम हो रहा है और इसको जो है वो जस्ट एन इंट्रोडक्शन के तौर पे हम पढ़ रहे हैं. इट हैज़ नॉट बीन अप्लाइड और इट कैन नॉट be applied as commercial scale composting process on thousands of tons of the waste. So it's like in initial stages. ये वर्म्स होते हैं. आप इसकी बेसिक ये वाली चीज़ें आप इसकी याद रख लें. वर्मी कल्चर क्या होता है? वर्मी composting is the product which is obtained is the process which is like converting the solid waste into the compost. Vermicompost is the product of the vermicomposting and vermicomposting is the process. ठीक है. Vermicast are the excreta of worms. Vermiculturist is the man or a person who farms, breeds or cares for worms. A professional worm farmer is called vermiculturist. जो इन worms को जो है वो maintain रखता है या इनको breed करता है वो vermiculturist कहलाता है. फिर इसके कुछ चीज़ें हैं कि किस तरह से आप इसको पाइल अप करते हैं. इसकी किस तरह से आप वेस्ट को अरेंज करते हैं, वेस्ट को पाइल अप करते हैं, कितना उसकी डेप्थ होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड हैं. तो आप इन चीज़ों को जो है वो लेटर ऑन थोड़ा बहुत देख लीजिएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x2 फीट का यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि आप 2x2 फीट का जो है वो आप जो है एक पिट जो है वो डिग करें एंड यू कैन पुट योर PVC sheet to arrest the escape of earthworm through crevices or earthen pot or brick cement tank or wooden boxes can also be used to house the earthworms. इसी तरह से फर्स्ट लेयर है, उसकी सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है. ये मुख्तलिफ चीज़ों की लेयर्स आप डेवलप करते हैं और उनके ऊपर जो है वो आप अर्थवॉर्म्स को छोड़ देते हैं. ये लाइट फोबिक होते हैं तो ये डिसअपियर हो जाते हैं इनसाइड द हीप और फिर वहाँ पे ये उस फूड को यूज़ करना शुरू कर देते हैं एंड दे कन्वर्ट द सॉलिड वेस्ट इनटू द compost and from one tank 50 kg of manure can be produced. ठीक है. तो ये इसका बेसिक पर्पस है और इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके साथ मैंने शेयर की हैं. आप इसको भी काइंडली देख लीजिएगा. लेकिन दिस इज़ नॉट द detailed or you can say this is like just an introduction of a new technique of the composting process. It is जो आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंपैरिजन तक ही करना है. उसके बाद जो है कोई अगर आपको कहीं पे किसी इंटरव्यू में या किसी जगह पे कोई नाम लेता है तो you must know that there is a type of composting in terms of vermicomposting as well as BSF. BSF is another technique. उसकी किसी टाइम पे मैं आपके साथ उसकी वीडियो शेयर कर दूंगा. इट हैज़ बीन लाइक शेयर्ड बाय द अर्बन यूनिट लाहौर एंड ब्लैक सोल्जर फ्लाई एक बड़ा आपके पास नया इरा है, नई एक चीज़ है जो आपको हेल्प करती है in terms of the preparation of the compost. ठीक है. तो वो फ्लाइज हैं जो कन्वर्ट करती हैं सॉलिड वेस्ट को इनटू दी सिंपलर प्रोडक्ट्स. एनी हाउ आज के लिए इतना ही है. आप इसको जो इसमें अगर कोई इश्यूज आते हैं तो आप काइंडली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द issues being faced by the students. Until that we should focus on the previous things which have been discussed in 2 lectures. First was the introduction of the composting process and this one was the designing and the operation of the composting setup or composting process.